वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु 9 पे स्वागत करता हूँ बेटा मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 दे रखा है अपने को 5/x - 1 एंड +1/y - 2 = 2 एंड 6/x - 1 -3/y - 2 = 1। इसको हम बाय यूजिंग द रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्व करेंगे। रिड्यूसिबल method we have to use the reducible method. What is the reducible method? We have just put in the value of x minus 1 is equal to capital A है ना, and second one y minus 2 is equal to capital B. Then equation number first become 5a plus b is equal to 2 and second equation is 6a minus 3b is equal to 1. This is the equation of first, this is the equation number second. ठीक है ना, are you got it my point? And you have to also check the coefficient and variable. There is the coefficient of b is 1 and the second equation coefficient of b is 3. We have to equate है ना आप coefficient of the same variable, then it will become, we have just multiply by 3 because we have to equate the both coefficient. One coefficient are the same 5a plus 5a not 5a 5 3 is 15a and plus 3b is equal to 6 and second equation 6a and minus 3b is equal to 1. You look at here, 3 and 3b are same and sign is opposite. We have to add equation number first and third and fourth है ना, इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड है ना, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, देन 3b have to terminate it and 21a is equal to 7 and the value of a is equal to 7 by 21 and cancel out 1 by 3, then a is equal to 1 by 3. ठीक है ना, now the a equal to 1 by 3, put it the equation of first or second. We put it the 5a and plus b is equal to 2 and put the value of b in the equation number first, value of 1 by 3 plus b is equal to 2 and multiply here. This is the 5 by 3 plus b is equal to 2 and 5 by 3 go to the right hand side, it will become minus 2 minus 5 by 3, 3 to the 6, 6 minus 5, 1 by 3 and the value of b is come 1 by 3 है ना, and value of a 1 by 3 also है ना, both are the same. Now we have to, this is not our answer, then what should did here, we have suppose 1 upon x minus 1 equal to capital A, then put the value of 1 upon x minus 1 capital equal to 1 by 3 and cross multiply to each other, then it will become 3 is equal to x minus 1, then the value of x equal to 4. Similarly we have just put the value of y minus 2 is equal to 1 by 3 and cross multiply to each other, so y minus 2 is equal to 3, y is equal to 5. Now let me check the answers correct or incorrect, then put the value of x and y in the any equation. 5 by x minus 1 plus 1 upon y minus 2 and the value of x is equal to 4, then 5 by 4 minus 1 is 3 and plus 1 upon the value of y is 5 minus 2 is 3 and LCM outcome 6 upon 3 and cancel out, it become 2, means our answer is the correct. ओके है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आसान है, ठीक है ना। चलो तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y. क्वेश्चन इज गिवन ax अपॉन b एंड माइनस by अपॉन a इज इक्वल टू a प्लस b, है ना। क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ए एक्स स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर वाई
यहाँ प्लस हमने लिख दिया था, इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी, है ना। चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और इधर दे रखा है भाई ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab. We have to check same things, and there is the coefficient of b is are different, so we have to equate and multiply by b, and it will become abx minus b square y equal to 2a square b, sorry 2ab square, है ना। and the first equation is x square minus b square y is equal to ab into a plus b, है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। we have to change the sign because both are similar sign. This is the minus, this plus, this is the minus, this will terminated, and here is abx minus a, sorry a square x, not ax square, a square x, है ना। यहाँ पर हमने ये है ये एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो जाएगा 2ab स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर बी एंड माइनस ए बी स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा ए बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम ए बी कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। और इधर से भाई क्या कॉमन कर लें बताओ, ए एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो ए एक्स अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा b माइनस ए, बचेगा ना, ठीक। यहाँ भी बचेगा ए एक्स इंटू बी माइनस ए। अब b माइनस ए उस साइड जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा भाई, ए बी इंटू बी माइनस ए और होल अपान ए इंटू बी माइनस ए। तो ये तो कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये वैल्यू आ गई भाई, अब ये वैल्यू तुम किसी इक्वेशन पुट कर लो, पहले वाले में पहली इक्वेशन का ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, है ना। पुट करो इसमें, तो यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, एंड माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, x इक्वल टू ए, सॉरी x इक्वल टू बी आना चाहिए था, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक, ये कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आना चाहिए था, b, क्या आना चाहिए था b। देखो छोटी छोटी मिस्टेक हो जा रही है, x इक्वल टू b, तो b यहाँ पुट करें तो ए बी एंड माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, है ना। तो ये उधर जाएगा, इसको लिख लेते हैं ए बी, उधर भेजे ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2ab, और ये इस साइड गया तो बी वाई, ये हो गया बेटा माइनस ए बी एन अपान बी इज इक्वल टू वाई, है ना। ओके, तो बी बी कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, ए इक्वल टू माइनस का, सॉरी एक्स वाई इक्वल टू आ गया भाई माइनस का ए, y की वैल्यू क्या आ गई, लो y इज इक्वल टू माइनस का a, आंसर आ गया, ठीक है। ठीक, चलो 6 नंबर आ गया। 7 नंबर देखो, 7 भी सेम तरीका से है, लगा सकते हो, बहुत आसान है ना। कह रहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन graphically and write the coordinate of the point where the line are intersect y axis. Can represent the pair of linear equation graphically. ग्राफली करना, ग्राफ पे भाई ऐसे कर लेना, देखो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो एक ग्राफ बनाओगे ऐसे, है ना। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आती जाएगी, y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और y की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो इधर से कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0, है ना। y की वैल्यू अगर -1 पुट करोगे -1,
तो ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ऐसे वह सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा बेटा 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y है तो ये प्लस 3y हो जाएगा, ठीक। x इक्वल टू क्या आएगा भाई 12 प्लस 3y और बाई 2, क्लियर है। तो यहीं पर पुट कर लेते हैं, देखो ध्यान से, देखो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 12, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, है ना। y की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो ये 2 3 6, 6 और 12 18, 18 से डिवाइड करना 9, है ना। ऐसे अगर -2 पुट करेंगे तब क्या आएगा, तो -6 -2 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, -6 3। अब देखो तो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहला ही पॉइंट देखो, ये पॉइंट ऐसा होगा जिस पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आएगी, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेना, बहुत आसान है, ठीक। फिर 9 नंबर क्या कहता है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द इन्फिनिटी एंड मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 9 नंबर का अपन लोग कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, ठीक। तो के इन्फिनिटी सोल्यूशन पूछ रहा है ना, तो इसको इधर भेजो तो हो जाएगा kx प्लस 3y एंड माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 12x प्लस ky एंड माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। वही e1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो रखते हैं भाई k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू माइनस k माइनस 3 बाई माइनस का k, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको इक्वेट कर लो, ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो k की वैल्यू कितनी आ गई +-6। तो रख करके चेक कर सकते हो, तुम्हारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इस पे दोनों मेरी सोल्यूशन है, पीछे मैंने ये क्वेश्चन बताया था, सेम क्वेश्चन था, सॉल्व x एंड y। तो सेम क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे, 5/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ लेट करोगे 1/x इज इक्वल टू कैपिटल A एंड 1/y इक्वल टू कैपिटल B, तो ये बन जाएगा बेटा 5A एंड प्लस B इज इक्वल टू 2। सिमिलरली देखो 10 नंबर हो जाएगा 6A माइनस 3B इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1। इसमें क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 15A, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, और प्लस 3B इज इक्वल टू 6, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 A इज इक्वल टू 6 7, तो A की वैल्यू आ जाएगी 7। अभी ऊपर लगाया मैं क्वेश्चन, ये 21 कैंसिल होकर 1/3 आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेना, सेम क्वेश्चन है ना, रिपीट कर रहा है वो, देखो रिपीट कर रहा है, सैम्पल क्वेश्चन दिया तो रिपीट कर रहा है। कह रहे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करोगे, अभी मैंने बताया ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या रखोगे 7 माइनस 3y। ऐसे एक टेबल बनाओगे, इस तरीके से टेबल बना लिया, इधर लिखोगे y, इधर लिखोगे x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 7, x की वैल्यू 1 रखोगे, सॉरी y की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 माइनस 7 माइनस 3 तो 4, x की y की वैल्यू 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक, सेम क्वेश्चन है। इसको उधर भेजोगे 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y, तो x इक्वल टू दे रखा है 12 प्लस 3y और अपान 2। तो सेम क्वेश्चन है बेटे, ऐसे लगाओगे, है ना, इस तरीके से, इधर है y रहेगा, इधर x रहेगा, तो x y की वैल्यू पुट करो 0, है ना, तो 12, तो ये 6 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू -1 रखोगे, -2 रख दो, क्या रखो -2, तो -2 रखोगे, -2 इंटू 3 -6 और 12 -6, 6 आएगा तो डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। 4 रखोगे, क्या 4 माइनस का 4, तो 12 - 12 0 आएगा, तो इधर 0 आ जाएगा, समझ में आया। और दोनों को प्लॉट कर लेना ग्राफ पे, क्लियर है ना। कह रहे हैंस फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई ए,
एक्स इक्वल टू वाई। ये एरिया बाउंड प्लॉट कर लेना भाई, तो तुमको समझ में आ गया है ना। फिर 12 नंबर क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। शैडो रीजन बाउंडेड बाय दीज एक्स एंड वाई, आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय गिवन द लाइन विद द। अब भाई तुम ऐसे प्लॉट करोगे तुमको एक ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से, ऐसे हो सकता है, ऐसे बने, ऐसे बन जाए, ठीक है ना। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वलेटरल रहेगा, तो √3/4a² है ना, तो निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ये फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व ग्राफिकली। कह रहा है 5 पेयर ए को, क्या कह रहा है 5 पेयर ए को, 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 5 पेयर ए को। तो 5 पेयर ए को का क्या मतलब हो गया भाई, सागर वाज ट्वाइस एज ओल्ड थिरू। तो हम मान लेते लेट सागर वाज ट्वाइस एज ओल्ड थिरू, है ना। तो थिरू की एज मान लेते हैं, लेट थिरू एज ऑफ लेट, यहाँ लिखना पड़ेगा लेट एज ऑफ थिरू टीरू इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। देन सागर एज कितनी हो जाएगी, सागर एज इक्वल टू हो जाएगा भाई वाई ईयर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, वाई ईयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो 5 साल से पहले एज ऑफ थीरू, तो क्या आ जाएगा x-5 ईयर। सिमिलरली सागर की एज क्या आ जाएगी, एज ऑफ सागर इक्वल टू y-5, ठीक है ना। सागर वाज ट्वाइस एज ओल्ड थीरू, कितना था, 5 साल बड़ा था, है ना, 5 साल पहले ट्वाइस था, तो 2 इंटू x-5 इज इक्वल टू y-5, तो जाएगा 2x - 10 एंड माइनस इक्वल टू y-5, तो ये इधर आ जाएगा भाई, ये बन गया 2x - y इज इक्वल टू 5। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, है ना, 10 ईयर लेटर, तो जब 10 ईयर लेटर कहेगा तो थीरू की एज क्या हो जाएगी बताओ, थीरू की एज क्या हो जाएगी भाई, x + 10 ईयर, और सागर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सागर क्या हो जाएगा, y + 10, है ना, बिकम द 10 ईयर मोर देन थीरू एज। तो ये x + 10 मोर देन, तो ये कह रहा है मोर देन किसके से, y + 10 से, है ना। तो ये हो जाएगा भाई x + 10 इज इक्वल टू 10 + y + 10, तो एक 10 से कैंसिल हो गया, तो x - y इज इक्वल टू आ गया 10। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 2x - y = 5, 2x - 5। अब ध्यान से देखो भाई, दोनों अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, x - x इक्वल टू -5, सॉरी +5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 -5। अब ये वैल्यू किसी में पुट कर लो, तो x - y = 10, ठीक है। इसको उधर भेजोगे तो -y = 10 +5, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 15, -15 नहीं, माइनस कहाँ से आ रहा है,
देखो क्या कह रहा है भाई, देखो 5 years ago सागर वाज ट्वाइस एज ओल्ड थीरो। सागर की एज क्या थी 5 मतलब 5 साल पहले 2 गुना थी। x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस y माइनस 5, तो ये होगा 2y माइनस का 10 और ये x माइनस 5, तो ये इधर आएगा भाई x माइनस 2y इज इक्वल टू आ गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 10 ईयर लेटर। जब 10 ईयर लेटर कह रहा है भाई 10 ईयर लेटर 10 साल बाद, तो एज ऑफ थीरू कितना हो जाएगा भाई x प्लस 10 और एज ऑफ सागर कितना हो जाएगा y प्लस 10, है ना। तो 10 years later सागर एज विल बी 10 मोर देन द थीरू एज, तो ये रहा x प्लस 10, तो सागर के से कितना है भाई 10 इंटू वाई प्लस 10, तो सॉल्व करोगे x प्लस 10 इक्वल टू क्या आएगा भाई 10y प्लस ये 10 है ना, मोर कह रहा है तो 10 टाइम्स नहीं कह रहा, तो ये जाएगा 10 प्लस y प्लस 10, तो ये 10 से कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 10। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर पहली वाली है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 5, तो इसको सॉल्व करो। देखो साइन चेंज हो जाएगी, तो इधर माइनस इधर प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया भाई 15। कितना आ गया 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15, है ना। इसमें पुट कर दो भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 10, तो ये उधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई, तो हो जाएगा 15, 10 प्लस 15, ये आ गया x की वैल्यू 25। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन पुट कर रखो। देखो रखोगे तो x की वैल्यू 25 आ गई, 25 माइनस की रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो मतलब जो थीरू की एज थी कितनी थी 25 और उसकी एज कितनी थी 10 ईयर्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सारे क्वेश्चन क्या हो गए अपने सही हो गए। ठीक है ना। चलो थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई, क्या करो लाइक एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और आगे बढ़ाओ। थैंक यू।